Yes, dear students, welcome all of you in session number 2 of chapter number 3. In last session, first session, we were doing question number 2 of the exercise 3.2. I have told you that you should try yourself, and I have made the equations. Again, I am starting. Yes, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of the 1 pen. Let the cost of the pencil is X. Let the cost of the pen is Y. Equation number 1. 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46. These are the two equations. Find out the coordinates, plot the graph, find out the solution where these two lines cuts each other. The answer will be 3, 5. Means there will be the cost of the pencil will be 3 and the cost of the pen is 5. The simple calculation I am not doing, I am giving you the idea. Question number 2. On comparing the ratios, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point parallel or coincident. These are the 3 equations. You know the condition? Okay. 1. Here A1 is, B1 is, and C1 is okay. Second equation, A1, A2, B2 and C2. A1 upon A2, B1 upon B2, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. So, lines are intersecting. Yes. Given pair of equation have a unique solution and intersects at one point. Okay. Question number second. This is 2 equations. These are 2 equations. A1, B1 and C1, A2, B2 and C2. A1 upon A2, 1 by 2. B1 upon B2, C1 upon C2, all are equal. Means lines are coincident. These 3 are same. The lines are coincident. Infinite solution. जब intersect करती है, they have unique solution. And when they are coincident, infinite solution. Why? Because every point on the line is a solution of that equation. Question number 3. A1, B1 and C1. A2, B2 and C2. A1 upon A2, 3. B1 upon B2, B3. C1 upon C2 is not 3. So A1 or A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. Means lines are parallel and they are not intersecting. So there is no solution. Never intersects.
नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। मजा आया? अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आइए भैया मुझे बताओ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जल्दी बता दो। हिंदी में कहते हैं संगत और असंगत। कंसिस्टेंट वो हैं जिनका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? या तो इंटरसेक्ट करती हो या कोइंसिडेंट हो। सॉल्यूशन किसका नहीं है? जो पैरेलल हो। जो पैरेलल है उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? करें? ओके, आ जाओ। हमारे पास 5 इक्वेशंस हैं, सबका निकालो। a1/a2, b1/b2, c1/c2। डू इट। मुझसे पहले आप करके बताओ, देन चेक मेरे साथ कि सही किया कि नहीं किया। इक्वेशन ये आ गई फर्स्ट, इसमें मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले लिया। a1/a2 3/2 है, लेकिन b1/b2 2/-2/3, तो दोनों सेम नहीं है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलोगे? इंटरसेक्ट्स ईच अदर, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसको चलो a1 b1 और c1 माइनस का ध्यान रखना, a2 b2 c2, a1/a2 1/2 काट देना, इसको छोटा कर देना। b1/b2 देखो, हाँ ये प्लस प्लस किया, फिर ये 1/2, ये देखो करके देखो, गलती नहीं होनी चाहिए। c1/c2 नहीं मिल रहा है। हाँ भैया क्या है? कंसिस्टेंट है कि नॉ इनकंसिस्टेंट है? a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, so there are parallel lines. Inconsistent result. इंटरेस्टिंग। चलो ये करो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1/a2 3/2/9। हाँ, इसको तुमको आता है कि नहीं पता नहीं, पढ़ा है फ्रैक्शंस में डिवीजन? पढ़ा है कि याद दिलाऊं? 3/2 डिवाइड बाई 9 हो तो क्या करते हो? 3/2 डिवाइड बाई 9 को ऐसे लिखते हैं, 3/2 इंटू 1/9 इज इक्वल टू 3/18 हुआ। हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 3/2 इंटू 9। प्रैक्टिस की बात है, तरीका ये है। ठीक है, कर दिया। 1/6 आया। b1/b2 दोनों इक्वल नहीं है, इंटरसेक्ट, रिजल्ट्स आर, सॉल्यूशंस आर यूनिक सॉल्यूशन एंड इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चलिए फोर्थ, b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2। ये a2 माइनस, ध्यान रखना आप, यहां भी माइनस है। करिए a1/a2 -1/2, b1/b2 c1/, तीनों सेम हो गया। बोलो जल्दी बोलिए। कोइंसिडेंट लाइंस, रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट रिजल्ट पर कंसिस्टेंट बोलते हैं। जिसका रिजल्ट होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, जिसका नहीं होता है सॉल्यूशन उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। चलिए ये भी करो। मुझे सभी वीडियो देखते देखते एक बात आनी चाहिए, सभी लोगों को क्वेश्चन अपने आप से भी करना है। a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1/a2 2/3, b1/b2 सेम हो गया, c1/c2 सेम हो गया। सेम कोइंसिडेंट लाइंस, कंसिस्टेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कंसिस्टेंट। तो इसको तुम थोड़ा ग्राफिकली भी करना चाहो तो कर सकते हो। ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सभी इक्वेशन में पहले तो ये बताओ कंसिस्टेंट है कि नहीं, फिर कंसिस्टेंट है तो इनके वो निकालो कोऑर्डिनेट्स, फिर कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्राफ प्लॉट करो, फिर ग्राफ प्लॉट करके उसका आंसर निकालो। प्रैक्टिस छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मैं अगला कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर। अब आ जाओ क्वेश्चन, बहुत देर हो गई, अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 centimeter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Let the length is x, तो width हो जाएगी, यहां ऐसे करो, length is l, तो width हो जाएगा कितना, 4 more than, तो नहीं उल्टा, L is equal to B plus 4। और हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है भैया, पेरीमीटर क्या होता है, ये आपका रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता है यहां से लेके गाड़ी यहां चलेगी, वापस घूम के आएगी, उसको कहते हैं पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या है, 2L प्लस 2B, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, इसको ऐसे भी लिखते हैं 2L प्लस B। यहां कह रहा है हाफ द पेरीमीटर, क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर है L प्लस B बराबर 36। 2 इक्वेशन आ गई, चलो करते हैं। यहां मान लेते हैं लेंथ x मान ली, कोई बात नहीं, ब्रेड्थ मान ली y, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4। सेकेंड दिया x प्लस वाई 36। इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। निकालिए सॉल्यूशन ग्राफिकली। Solution will be 20 and 16. Length is this, breadth is this. ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बच्चों, कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। इक्वेशन तो आ गई, यहां तक अपन ने इक्वेशन बनाने का खेल था। यहां गलती हो गई तो गाड़ी आगे भी गलत जाएगी, लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद भी कैलकुलेशन करना है, छोड़ देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, लीनियर इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज intersecting, parallel and coincident. इस क्वेश्चन को कौन करेगा भैया। इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8। यहां a1 b1 c1 भी हमको मालूम है। अब इंटरसेक्टिंग करना है तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 मिलना नहीं चाहिए, तो कुछ भी लिख दो। मान लो यहां 4x लिखो तो यहां 6y मत लिखो, 8y लिख दो, माइनस 12 कुछ भी लिख दो। तो ये आपकी हो गई वो लाइन जो इंटरसेक्टिंग है। क्यों, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मन जैसा मन पड़े लिखो। इसी इक्वेशन में कोई बच्चा कहे पैरेलल खींचनी है मेरे को, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो सेम रखो, c1 अपॉन c2 को अलग कर दो। तो कर देते हैं अभी अपन। ये है a1 अपॉन, तो ये 2x है ना, तो इसको बना दो, यहाँ मान लिख दो 4x, तो है ना 1/2 हो जाएगा। ये 3y है ना, इसको लिख दो 6y, है ना बेटा। और नीचे क्या लिखा है, -8 है, यहाँ कुछ भी लिख दो,
-16 मत लिखो, बस -17 लिख दो चाहे। ये आपकी हो गई पैरेलल लाइन। हुई A1/E2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। आया इंटरेस्टिंग। और तीनों सेम कर दो, कोइंसिडेंट, ये मैंने कर दी। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बना दोगे, अपने मन से कर लोगे। चलिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है? Draw the graph of equation, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines on the x-axis and shade the triangular region. दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, ड्रॉ कीजिए, ऐसा बनेगा। ये आपका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसमें ये लगभग 2 लाइन ऐसी बनेगी। तो आपको क्या कहा है कि जो शेडेड पोर्शन है ऐसे ऐसे तीनों का निकलेगा, एक्स एक्सिस पर काटेगा, वो ट्रायंगल बन जाएगा। बस ये कुछ नहीं करना, इसमें केवल आपको ग्राफ प्लॉट करना है और एक्स एक्सिस पे वो ट्रायंगल बनाएगा, उसके जो वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट लिखना है। कर लोगे? अब आगे वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं आज। एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। अब मैं ग्राफ से सॉल्यूशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन करके एल्जेब्रिक मेथड से करता हूं। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें दोनों में से किसी एक का x का या y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन रखूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पर हो रहा x इज इक्वल टू 3 - 2y। इस 3 - 2y को उठा के और इसमें रख दूंगा 7x की जगह। अब x हट गया, y आ गया, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। बहुत इजी है, करिए करिए। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। जो छोटी इक्वेशन है इजी वाली है ना, उसमें से कोई भी x या y सेट करो। यहां अपन ने 3 - 2y रखा, उसको पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 यहां रखा। करिए, करो सॉल्व। 21 - 29y इज इक्वल टू 2, -29y इज इक्वल टू -19, y इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस बन जाएगा। आंसर इज, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो जो छोटी है उसमें रखने का, तो इक्वेशन नंबर 2 थोड़ी छोटी है, उसमें रख दो। रख दिया, करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, डू द कैलकुलेशन। So you will get the x is equal to 49/29. So different type of answer है ना, अलग अलग आंसर, जोरदार आंसर है। चलिए बच्चों आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 8, बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा क्वेश्चन? 3.1 का पहला क्वेश्चन, आफताब वाला, उसकी डॉटर वाला। फॉर्मूला याद है कि भूल गए? आफताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तेरे से कितना 7 गुना था और 3 साल बाद मेरे से 3 गुना हो जाऊंगा। फॉर्मूला याद है ना, किए ना अपन ने? उसको सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां इन्होंने क्या किया है, आफताब की एज को और डॉटर की एज को s और t मान लिया, अपन ने x और y माना था।
अपने इनके पास इक्वेशन आ गई है, मान लेते हैं अपन, मान ले x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन हो गई कहाँ लिखी, अच्छा ये है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये अपनी दूसरी इक्वेशन रख दीजिए भाई, x की वैल्यू रख दीजिए, आ जाओ, ये मैंने रखा है, ये मेरा पहला इक्वेशन नंबर 1, ये उसकी दूसरी कंडीशन थी, ये इक्वेशन नंबर 2, मैंने ये रख दिया x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, इसको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर रखो, पॉज द वीडियो, डू इट। जब मैं इसको रखूंगा तो ये आएगा, और फिर क्या करूंगा, 6 माइनस 4y प्लस 42, फिर माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48, फिर y इज इक्वल टू दिस प्लस हो गया, y इज इक्वल टू आ गया 12। y की वैल्यू रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, x आ गया 42, आफ्ताब जो है उसकी एज है 42, और उसकी जो डॉटर की एज है 12, आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे भैया। एग्जाम्पल नंबर 9 में एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाओ आप, सेक्शन 3.3 में, वहां पे एक पेंसिल और पेन का अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें जाओ, 2 इक्वेशन ये बनी हुई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैंने किया, ये x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से आ गया, इस x की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में रखो, करिए। अब ये कैलकुलेशन तुम करना सीखो बच्चों, कैलकुलेशन कभी भी अपने आप से करनी चाहिए, ठीक है। इसको यहां से काट दिया, 2 हो गया, ये आगे 18 माइनस 6y प्लस 6, ये दोनों कट गया, 18 इज इक्वल टू 18, क्या आ गया, y गायब हो गया, 18 इज इक्वल टू 18, तो क्या है ये, तो क्या है ये, इसका जब ऐसा आंसर आ जाए ना तो समझ लेना लाइन कोइंसिडेंट है। क्या है लाइन, this statement is true for all values of y. So however we do not get a specific value of y as a solution, therefore we cannot obtain a specific value of x. This situation has arisen because both the given equations are same, therefore equation 1 and 2 have infinitely many solutions. Observe that we have obtained the same solution graphically. कोइंसिडेंट लाइन जब होगी तो ऐसा आंसर आएगा, और पैरेलल होगी तो कैसा आएगा भैया। एग्जाम्पल नंबर 10, चलो आ जाओ, यस, 2 इक्वेशन ये करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए जरा, लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मैंने x की वैल्यू रखी, इसमें 4y कट गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो मामला पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि these are parallel lines and have no solution. False statement. So they will not cross each other, so there is no solution at all. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ मजा आया? चलिए एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाओ जल्दी से।
और एक्सरसाइज मैं शुरू करूं उसके पहले तुम्हें क्या करना है मालूम है? Pause the video and do all the questions by yourself. Try. Solve the following parallel equation by substitution method. चलो सारे क्वेश्चन कर डालो, बहुत अच्छे करना है। All the 6 क्वेश्चन करना है। सारे क्वेश्चन में कुछ विशेषता है, कुछ तो बहुत इजी है, कुछ में कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से मैं लेता हूं x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 एंड रिप्लेस दिस इन इक्वेशन नंबर 1। यू राइट डाउन द लैंग्वेज, put the value of x from equation 2 to the equation number 1 या equation number 3 इसको मान लीजिए। from equation 3 put the value of x in equation 1। ये आ गया 2y is equal to this, y is equal to 5। then put the value of y in equation number 2 या 3। answer is 5 and 9। क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। मुझसे पहले आप करिए बच्चों, देखो मजा आएगा, नहीं तो सीखने को नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स है बच्चों, देखो ये लैंग्वेज पेपर नहीं है, मैथमेटिक्स है। इसमें कैलकुलेशन करने से ही सीखने को मिलता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 को जरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना, तो मैंने 6 का एलसीएम ले लिया, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू दिस। अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल 36 आ गया इक्वेशन नंबर 2। और ये इक्वेशन नंबर 1 से मैंने s की वैल्यू रखी, इस s की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ। रख दिया, करिए सॉल्व। t इज इक्वल टू 6 और s यहाँ इक्वेशन नंबर इसमें रखो, 3rd में 1 में, तो s इज इक्वल टू 9। इजी है ना बच्चों? थोड़ा सा अपने को करना क्या था, यहाँ सिंप्लीफिकेशन, देखो ये इसीलिए सीखने को मिलता है। ये इतना सा पार्ट आपको खास सीखने जैसा है। यहां गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चे लोग गलती कर देते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे गलती करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इजी दिख रहा है, कर लो। ये 1 इक्वेशन, यहां देखो इक्वेशन नंबर 2 में कॉमन आ रहा है 3। तो क्या करो, यहां डायरेक्ट कॉमन ले लो 3 दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ ले सकते हैं, या कह सकते हैं डिवाइड बोथ साइड बाई 3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अपने पास एक छोटी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई ये, सेकंड इक्वेशन आ गई ये, दोनों सेम है। तो equation 1 and 2 are same, both are coincident and have infinite solutions. Same. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? दिस हटाओ पॉइंट। जब 10 को सब तरफ को, दोनों तरफ है तो कॉमन लेके भी उड़ा सकते हैं अपन, तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। इसीलिए कैलकुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन करने से कैलकुलेशन आती है। एक बार ट्रिक आ गई, बस करो क्वेश्चन। सेकंड वाला
करो बस। एक में कहीं से भी x की वैल्यू लाओ, ये इसकी x की वैल्यू आई, इसको इसमें रखी, इसको इससे काटा 2 आया, फिर सॉल्व किया 26 माइनस 6 प्लस 5 बाई दिस माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू y की वैल्यू रखो, ये आ जाएगा यहाँ x की वैल्यू, तो x आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 2, y इज इक्वल टू आ गया 3। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देख लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 आई, ये इक्वेशन नंबर 2 आई, यहां से x की वैल्यू उठाई, इसमें रखा, y इज इक्वल टू 3 आया, y की वैल्यू को इसमें रखा, x इज इक्वल टू 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। बेटा कैलकुलेशन का ही खेल है ये। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के अंदर, मस्त मस्त, सब में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगेगा। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी है भैया। तो इसमें क्या करना है, मान लिया इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू करी, इसमें रखी, ये √3 माइनस का करो कैलकुलेशन, डरो मत। √3 और √3 बन गया 3, नीचे √2 है ही, माइनस ये इस 8 का खेल जोरदार है यार। ये √8 को मैंने 2√2 लिखा, कुछ सही है या गलत है? √8 इज इक्वल टू, ये कह रहा है 2√2, कौन बच्चा बताएगा सही है या गलत है? कैन एनीबडी टेल मी? अच्छा मैं बताता हूं, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूं √4 इंटू √2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू √2, तो 2√2 आया कि नहीं आया? आया। कभी आए तो डरना नहीं। ये मैंने यहां पे क्या किया, 8 की जगह 2√2 लिख दिया। अब मैंने y कॉमन निकाला, ये संख्या जो भी आ रही है इक्वल टू 0 है, भले कुछ भी यहाँ कुछ भी वैल्यू आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 उसमें रखा, x भी 0 आ गया, दोनों का आंसर 0 0। बहुत ईजी। y इंटू कुछ भी इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 ही हुआ ना। इसका लास्ट क्वेश्चन है, पहले वाले इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वाला इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों तरफ से 6 से 6 कट जाएगा, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। देख लो बच्चों, मैथमेटिक्स में सिंपल कैलकुलेशन में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो तो हर क्वेश्चन में ट्रिक्स है छोटी मोटी, तो वो तो आपको आनी चाहिए। I can teach you the formula. So this is your equation number 1. इक्वेशन नंबर 2, यहां से इसको x की वैल्यू ली, इक्वेशन नंबर 1 में रखी। करिए कैलकुलेशन बच्चों, करिए 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 करिए। यस, y इज इक्वल टू 3,
और y की वैल्यू इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू 2। पूरा क्वेश्चन वापस से देख लीजिए शांति से। ये इक्वेशन x की वैल्यू यहां इसको रखा। This is the calculation. You will get y is equal to 3. When you put this in equation number 2, you will get x is equal to 2. Okay? चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर करेंगे 2। Solve this equation and hence find the value of m. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां पर दो इक्वेशन दे रखी है, x और y की वैल्यू निकाल लो, और ये दोनों x और y की वैल्यू यहां रख दीजिए। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। बस करो। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? 2 ले सकता हूं, तो 2 ले लो। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। हो जाएगा। दोनों इक्वेशन आ गई। इसमें से मैंने इसको ये लिखा 2y माइनस 12, इसको इसमें शिफ्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। मैंने कैलकुलेशन करके देखा 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 5। आंसर मेरा आ गया y इज इक्वल टू 5। x उसमें किसी इक्वेशन में रख के देखा, आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू है 5, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एम प्लस 3। तो माइनस 2m इज इक्वल टू हो रहा है 2। तो m इज इक्वल टू हो रहा है माइनस 1। हो रहा है क्या? यस। सही है। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये सारे क्वेश्चंस की इक्वेशन बनानी है पहले, तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन लेट द वन नंबर इज x, दूसरा है y। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर 2 x इज इक्वल टू 3y। ये आ गया। बहुत इजी है भैया। ये x की वैल्यू यहां रख दो। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 13, और x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। तो x इज इक्वल टू है 39 एंड y इज इक्वल टू है 13। Now my dear students, from question number 3 part 2, 3, 4, 5 and 6, you will do yourself, try it yourself. When I will come in the next class, I will teach you
but before coming to that, entering to that class, you should try. And all the questions which we have already studied till today's class, you should try all the questions in your rough copy. Then you finally, when you're understanding it, completely write all the questions in your fair copy also, so that you can understand it properly and you can write perfectly in the exams. Okay? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ेंगे जो थोड़ा और इजी है, और एक लास्ट में एक और मेथड आएगा, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी बहुत अच्छा है. Okay, so we will meet in the next class. Okay, dear students, try all the questions.